को ले जाया। Well, right behind me is the JCB. कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार से कि ये कितनी भी जास्ती कर ले, ये कितनी भी दादागिरी कर ले, ठीक है? आप यहीं के लोकल रेजिडेंट हैं जहाँ पे शाहीन मैं लोकल हूँ, कांग्रेस की नेता हूँ। आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? आप यहाँ की निवासी हैं? जी, मैं यहीं की निवासी हूँ। तो ये बताएं आप क्या चीज है? ये देखिए जबरदस्ती कर रहे हैं पुलिस। ये देखिए यहाँ पे पुलिस अपना काम करना चाहती है। Well, you can see the JCB has in fact moved forward at Shaheen Bagh, and they are being stopped by the local Congress workers and also by the other local residents over here, saying that this is illegal the way the encroachment is in fact going on. All these shops, in fact, if you remember during the anti-CAA riots as well, anti-CAA protest as well, these shops were in fact closed down, and this is what the MCD has been saying. This has been encroached, this road. They are not supposed to put out their construction on the road like this, and that is why this encroachment drive is going on. I have some locals over here, sir. ये अभी JCB को रोका जा रहा है, आप यहीं से हैं, आपकी दुकान है? लोकल नहीं है जो रोक रहे हैं, हमारे यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, तो ये बताएंगे कौन है? हमारे यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं। आप खड़ी हैं, आप अपने कैमरे से देख के बताइए क्या इंक्रोचमेंट है? बिल्डिंग अगर इंक्रोचमेंट है, ये जो फुटपाथ बोल रहे हैं, ये रोड को कवर कर रहा है ना? ये हमने नहीं बनाया, ये सरकार बनाती है। हमारा प्लान थोड़ा ही ना है, हमारा तो जो लोग बनाते हैं वो अपना मकान बनाते हैं। इंक्रोचमेंट इस रोड पर वो ट्रांसफार्मर है, वो गवर्नमेंट का, हटवा दें। नहीं, आप शाहीन बाग में ही रहते हैं? शाहीन बाग में। तो ये जो JCB रोक रहे हैं वो भी शाहीन बाग वाले हैं? कौन है? सब शाहीन बाग के यहाँ नहीं है। शाहीन बाग के लोग शांत है, क्योंकि शाहीन बाग में कोई ऐसा इंक्रोचमेंट है ही नहीं। जो था वो लोगों ने खुद हटाया। इंक्रोचमेंट के हम फेवर में नहीं है। हम भी चाहते हैं कि पूरी दिल्ली साफ हो। रोड पे हमें ही चलना है, आपको चलना है। MCD कह रही है कि जो रोड है उसको कब्जा किया है, इसीलिए एनक्रोचमेंट ड्राइव है। क्या कहना है शाहीन बाग वालों का? बिल्कुल एनक्रोचमेंट हटना चाहिए और जो भी इलीगल है वो हटना चाहिए। शाहीन बाग वाले इसके अगेंस्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट आपको दिख रहा है तो बताइए। तो क्यों रोका जा रहा है? ये देखिए अभी डिटेन हुए हैं सारे, ये लोग कौन है? यहाँ पे ये इन्हीं के लोग हैं, यहाँ पे शाहीन बाग का लोकल नहीं है। Okay. So these people, Shaheen Bagh locals have also been saying that these are not Shaheen Bagh people or residents who are in fact stopping. If I ask my camera person Yogesh to show you, this is the bus by Delhi police where there are people who are getting detained. These are the Congress workers who were in fact stopping the JCB to enter from Shaheen Bagh or to do their encroachment drive, to go ahead with encroachment drive. And now they are being stopped and they are being detained. And slowly now we are seeing that the bulldozer is in fact making their way ahead into Shaheen Bagh, which the Shaheen Bagh residents have in fact been saying that they are not against the drive altogether, but at the same time the selective drive is something that they are questioning. There are in fact encroachment that are happening in multiple places in the national capital. Why only selective places are being targeted is a question that is being asked by the residents over here, and they are specifically saying that the people who are stopping the JCB are not Shaheen Bagh residents or locals. These are Congress workers. They are the ones who are stopping the bulldozer over here. These visuals, let's go across to Priyank as well. Priyank, the argument seems to be that this area is being targeted because it was the epicenter of the anti-CAA protest. But if you look at the map of the MCD that has been given, there are several other areas that have been identified as well. पुलिस लेकर जा रही है, जो हमें विरोध प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जा रहा था, और पुलिस लेकर। हाँ जी, आशीष जी बोलिए। जी, मेरा मानना ये है, जो ये गरीबों की आवाज़, हाँ जी बोलिए बोलिए, जो ये गरीबों की घर तोड़ना चाहते हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट होना चाहिए, मगर गरीबों का घर नहीं टूटना चाहिए। जो गरीब यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई की तरह रहते हैं, यहाँ हम नहीं चाहते जहांगीरपुरी यहाँ बने। तो आपके यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, लोकल लीडर? जी, मैं यहाँ लोकल लीडर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। और यहाँ पर जिस तरह देखिए ये पुलिस ये चीज़ करती है हम लोगों के साथ, हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाले वो लोग हैं।
नहीं करे कार्रवाई, मगर इस तरह नहीं करे। लेकिन पहले बता दिया गया था ना आपको तो। एक मिनट आराम से आपको भी गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है आप? सर गिरफ्तार क्या डिटेन कर रहे हैं ये लोग। इसमें हमने आवाज़ उठाई थी जब पब्लिक का यहाँ से फ़ोन आया, जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच के मैंने बात सुनी। हाँ कोई बात नहीं जी जी। तो आप लोग आपने प्रोटेस्ट किया, आज प्रोटेस्ट भी किया, बुलडोजर चलने नहीं दिया क्या? सर बुलडोजर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज हैं। आप प्रूफ के साथ सब पर चलाइए, हम शाहीन बाग में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप अकेले शाहीन बाग पर अटैक करेंगे तो सर भारत के अंदर सर डिक्टेटरशिप नहीं है, ये सब डिक्टेटरशिप में होता है कि आप किसी घर को भी तोड़ दें, किसी की दुकान को। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि प्रूफ के साथ आप किसी का मकान तोड़िए, किसी का हाथ तोड़िए। आपका क्या नाम है? क्या आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं? बिल्कुल, मैं शाहीन बाग का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रमीज रजा नाम है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी पर भी अटैक कर रहे हैं तो सर आप प्रूफ के साथ करिए, मैं आपका साथ दूंगा। दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज हैं, आप शाहीन बाग को हर साल हर महीने अटैक करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके अलावा भी काफी सारी जगह जो आइडेंटिफाई करी गई है, सिर्फ आप हम ओखला के लोग खुद परेशान हैं, जिन लोगों ने घेर रखा है उसके यहाँ पे इंक्रोचमेंट के लिए मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ जो लगातार एसडीएम को, लगातार डीएम को, लगातार एमसीडी को यहाँ के लेटर देता हूँ कि यहाँ के इंक्रोचमेंट पे काम कीजिए। वो हटाते हैं, वो आगे करते हैं, फिर मुझे इस बात का ये बात समझ में नहीं आती है कि बुलडोजर लाने की क्या जरूरत पड़ गई। और दूसरी बात, मैं ये बुलडोजर जो लोग लेकर के आ रहे हैं, मैं उन लोगों से इस बात का सीधा पूरा उनको चैलेंज देता हूँ कि आप मेरे साथ शाहीन बाग में घूमिए, आप चलिए शाहीन बाग में कहाँ इंक्रोचमेंट है मुझे दिखाइए, क्योंकि मैं खुद ऐसा एक व्यक्ति हूं कि मैं खुद वहां पर जाकर के लोगों के जो इंक्रोचमेंट होता है उसको हटाने का काम करता हूं, ताकि यहाँ की जनता को परेशानी ना हो। हम लोग इतनी सी उम्र में ये सारे काम कर रहे हैं, फिर बुलडोजर लाने तो ये एक बात मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। जहांगीरपुरी के अंदर एक कम्युनिटी हिंसा होती है, उसके बाद से वहां पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो और फिर उसके बाद यहाँ शाहीन बाग को टारगेट किया जाता है, जबकि 1600 से ज्यादा दिल्ली के अंदर कॉलोनियां है, वहां तो वो लोग नहीं गए। तो मुझे सीधा ये समझ में आता है, इनकी मंशा साफ, इनकी मंशा ये है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जो हिंदुस्तान के अंदर एक उरूज पे है। यानी कि मैं ये मानता हूं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। शाहीन बाग जो यहाँ के कांग्रेस के लोकल लीडर थे वो तो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि ये तो दुकानों पे टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूं, उनकी वो पॉलिटिकल है, उनको अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है, उनको सबका वोट चाहिए, मुझे थोड़ी किसी का वोट चाहिए सर। तो मैं तो सब बात करूं, वो सबकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ जिसके साथ यहाँ पे हो रहा है मैं उसके लिए बात करूंगा ना। यहाँ शाहीन बाग के अंदर आप मुझे बताएं, शाहीन बाग के अंदर ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हो? यहाँ तो एक ही कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं ना। मैं आपको बता दूं, पर ये जो इंक्रोचमेंट का जो एरिया जो आज लोगों ने भी रात बेरात हटाया है और आज भी सुबह हटाया, क्या इंक्रोचमेंट एरिया था? वहाँ पे किसी ने कोई इंक्रोचमेंट नहीं हटाया, वहाँ पे किसी ने कोई इंक्रोचमेंट नहीं हटाया। आप मेरे साथ अभी भी चल के देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंक्रोचमेंट हटाया तो मैं देखूंगा, वहाँ पे कोई ऐसा इंक्रोचमेंट हटाने का कोई वो नहीं है। So these are the voices of the local residents who believe that one particular Shahin Bagh has been targeted time and again by the civic authorities and the government. While at the same time you can see the bulldozers are also being run here in the particular area, but there is no people are following this particular bulldozer, and the protesters who were protesting right in front of the bulldozer were detained by the police and CPA personnel. All right, Sharon, if you can talk to a few more residents there, because the charge that this area is being targeted because of the Shahin Bagh protests, if you look at the documents that the corporation has provided, it's not just Shahin Bagh. There are several other areas that have also been identified for the anti-encroachment drive.